ओके, एमटीजी का ये पेपर है, सैंपल अच्छा पेपर। ये है, हाँ 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 बराबर। ये सर राम अभी सर ने भी अगस्त भेजा एडिशन का ही है, भेजा था। था। ओके। हाँ भेजते रहते हैं, अच्छा है ये। हाँ, इनके पेपर्स अच्छे हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं। हम्म, हाँ Okay, first one, indicate the organic structure for product expected when 2-methylpropene is heated with acetyl chloride in presence of anhydrous ZnCl2. मिथाइल प्रोपीन, आइसोब्यूटाइलीन 2-methylpropene is the famous alkene, एसिटाइल isobutylene. क्लोराइड। Acetyl chloride in presence of anhydrous ZnCl2 across the double bond, क्या होगा? हाँ एडिशन ही होगा ना इसमें। It will be a simple addition. And Addition. before the addition, what will be the electrophile? this things isobutylene ना नहीं, this will act as a नहीं Cl nucleophile. माइनस, Cl हाँ माइनस, सॉरी Cl माइनस और CH3CO प्लस। हाँ, इसका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जी। हाँ असाइलेशन CH3CO जब प्लस। हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में करते हैं तभी भी तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करते हैं ना। हाँ इट इज बराबर। CH3CO प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो जनरली ये बेंजीन पे अटैक करता है, wherein benzene acts as nucleophile. Now here instead of the aromatic compound it is being given an alkene. डबल बॉन्ड तो है। डबल हाँ बॉन्ड के अक्रॉस ये एडिशन करेगा। अच्छा, दूसरी बात, जब बेंजीन के साथ असाइलेशन करते हैं इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा होता ESR है। होता है। बट अल्कीन के शांति अक्रॉस योर मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एडिशन। रिएक्शन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू बी नोटेड हियर। Got it? यस Acylation सर। with is ESR, acylation with alkane is EAR. ठीक है? Now this यस addition is happening across an unsymmetrical alkene, so addition will take place according to MR MR. MR। So plus will go to the carbon having the बीच वाला कार्बन नहीं माइनस will go to the बीच जाएगा वाला जाएगा प्लस माइनस, राइट फिर साइड वाला ज्यादा CL के जाएगा। पास और माइनस जाएगा कम के पास। सिंपल सा मार्कोनिकॉफ एडिशन करना था and the product would be CH3C CH3 with a Cl नीचे CL, and CH2 के H2CO साथ acyl group आ जाएगा, acetyl group. The answer is C। option C. Here the mechanism is electrophilic addition reaction and with aromatic it would be ESR. Phospholipids are esters of glycerol with phospholipid में the group जैसे ग्लाइकोलिपिड्स में क्या था, what was the group? नाम में ही आंसर। क्या 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 ग्लाइकोलिपिड्स में Glycolipids, what is the group? NH2 था। ग्लाइको refers to sugars, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज, वैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट होगा। विल बी अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और ये सब ट्राई एस्टर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरॉल होता है जहां पर द हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। तो फॉस्फोलिपिड में एक H फॉस्फेट से रिप्लेस होता है और दूसरा ईस्टरिफाइड होता है, मतलब इट इज रिप्लेस्ड बाय द असाइल ग्रुप। सी, जब से सबसे पहले ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। हम फैट्स या लिपिड्स की बात करते हैं तो उसको TAG बोलते हैं। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, या फिर शॉर्ट में इनको ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। गेटिंग इट? हेलो। So glycerol is basically nothing but an alcohol. When you react with the acid, it will undergo which reaction? Alcohol and acid एस्टरिफिकेशन। esterification होगा।
तो यहाँ पर there are 3 OH groups, so there will be 3 moles of RCOOH which will be reacted. Now esterification में एसिड का OH और H OH का H और OH का ये वाला H निकल जाएगा. So there will be 3 moles of water which will be lost. And now जो सामने मिलता है that is the general structure of a fat or a lipid. समझा? That is the reason they are called TAG यानी triacyl derivative of glycerol या फिर triglyceride बोलते हैं. अब इस केस में जब ये R saturated fatty acid का derivative रहता है तो the corresponding compound is a fat. And if it is an unsaturated fatty acid का derivative, then corresponding compound is called oil. तो oils and fats basically ये दोनों ही lipids की family से आते हैं. ठीक है. अब उसमें there are different types of lipids having different functions. तो phospholipids जो होता है उसमें 2 groups तो esterified रहते हैं with the carboxylic acid residue and one of the H is replaced by the phosphate. So the answer is 1 phosphate 2 carboxylic. 2 carboxylic acid residue. यहाँ पर जैसा ये structure है खाली इसकी जगह there will be a phosphate group which will be bonded as P double bond O OH and OH. बस वो हो जाएगा phospholipid. That's why the answer is B. Which of the following alkali metal ions has the highest conductivity in aqueous solution? CS plus. CS plus. Simple था ये. Least hydrated. Yes. Lithium का cation being smaller Most hydrated. will be most hydrated. Most hydrated. Mobility कम हो जाएगा. भी सबसे ज्यादा होगा और उसका वो भी है मोबिलिटी कम हो जाएगा. So यहाँ पे एक और चीज था Li plus का aqueous ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा Li का plus. Obviously Li plus aqueous because more water is associated will be having a greater ionic size. तो यहाँ पर ionic size versus hydrated size में हमें पता है Li plus का hydrated size बहुत ही ज्यादा है as compared to its normal cation, right? ठीक है. और इसकी मोबिलिटी सबसे लीस्ट होगी बिकॉज ऑफ मोस्ट हाइड्रेशन और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम ही होगी. सो लीस्ट मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. और एक एक्सेप्शन क्या था इस पार्ट का? एक्सेप्शन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Li का सबसे ज्यादा है, उसके बाद CS का. मैक्स Li का है. और फिर यहाँ Li प्लस की बात करो, ये सब Li प्लस के लिए लिखा है मैंने. मैक्स रिड्यूसिंग पावर. और इसका रीजन क्या था? व्हाट डोमिनेट्स ओवर व्हाट? दिस थिंग. व्हिच एंथैल्पी डोमिनेट्स ओवर व्हिच अदर एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंड लैटिस. हाइड्रेशन dominates over आयोनाइजेशन. Li से Li प्लस बनाने के बाद जब वो हाइड्रेट होता है तो उसकी हाइड्रेट करने की एनर्जी इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन एज वेल एज द रीजन. ठीक है. गॉट इट. अच्छा, फिर इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर कैसा हो जाता है? Li प्लस तो पहले आ जाता है, उसके बाद CS प्लस. हाँ, फिर उल्टा जाता है. फिर CS RB KN है. ये भी एक ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग पावर का. ठीक है. In order to convert aniline to chlorobenzene, the reagent used is nano2 वाला ना. nano2 HCl. nano2 HCl will give diazonium chloride. UCl और UCl डाल देंगे. बराबर. Sandmeyer's. Sandmeyer है तो Cattleman. तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सैंडमेयर का है. कॉपर कैटलिस्ट यूज कर लो कैटरमैन. Cu प्लस कैटलिस्ट. बराबर. कैटरमैन में खाली Cu आएगा. कैटरमैन में ओनली Cu. ये क्यूपरस है. क्यूपरस वो कॉपर कैटलिस्ट है. हाँ. ठीक है.
अच्छा, सैंडमेयर्स वर्सेस गेटरमैन में यील्ड कहाँ पर बेटर होता है? सैंडमेयर हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. In the formation of chlorobenzene from Sandmeyer and Getterman, the yield is better in Sandmeyer, better than Getterman. Okay. For the given structure, the site marked as S is a dash void. This one. OV है ना, OV. It is octahedral void. So Edge OVs center. are located at what? Edge center, and tetrahedral is diagonals पे located होता है tetrahedral. क्या? OV is located at the edge center. Edge center and body का center. And body center ना? Edge center and body center. TV is located on the body diagonal. हाँ, या तो फिर ऐसे बोल याद रखना है at the center of small cube of a large cube. तो जो ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे छोटे 8 क्यूब्स जो मिलेंगे उसके बॉडी के सेंटर पे रहेंगे. ठीक है. तो ओवीज का कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एज सेंटर्स कितने होते हैं? How many edge centers? 12 with contribution of 4 होगा. 1/4. 1/4. And एक बॉडी सेंटर होता है with a complete 100% contribution. इसलिए ये 4 हो जाता है. तो FCC में there are 4 atoms and there are 4 OVs. That is why जितने atoms होते हैं उतने OVs होते हैं. Number of atoms equal to number of OVs. और TVs के केस में क्या होता है? TVs 8 हो जाएंगे ना. बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 100% होता है, लेकिन FCC के एटम्स 4 ही होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं for n atoms in a FCC the OVs are same but TVs are 2n. double. Which one of the following cyno complexes would exhibit the lowest value of paramagnetic behavior? Least number of unpaired. Least number of unpaired. तो सबका एक एक पढ़ के देख लेते हैं. क्रोमियम का 3+, पहले ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है. 5 3 होंगे. इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s1 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d3 3 unpaired. तो ये तीनों अनपेड ही रहेंगे इवन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है. और बाकी के 2 ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेंगे. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा 2 अनपेड रहेंगे Mn में. नहीं, सुनो मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ. D2sp3. इट विल बी T2sp3. तो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल. और जो इनर ऑर्बिटल है वो लो स्पिन होते हैं कि हाई स्पिन? लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन. लो नहीं होगा, हाई स्पिन ना. अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. जब आपका पेयरिंग होगा और आउटर ऑर्बिटल में आएगा इनर में बराबर तब स्पिन जो है वो लो स्पिन हो जाएगा. इस केस में इट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो तो दिख ही रहा है, इट इज 3. Got it? उसके बाद Mn का 3+ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4 अनपेड उसमें से 2 पेयर हो जाएंगे. 4. हाँ, अभी क्या होगा? 2 पेयर हो जाएंगे. 3 में से 2, 4 में से 2 पेयर होंगे. क्या बोला आपने? 4 में से 2 अनपेड रहेगा, 1 पेयर. हाँ, 2 अनपेड रहेंगे 2 और पेयर रहेगा, 2 पेयर हो जाएंगे. 2 अनपेड है. हाँ भाई, ऐसा होगा. और ये भी कॉम्प्लेक्स D2sp3 होगा. इट विल बी इनर ऑर्बिटल, हाई स्पिन एंड 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. Fe का 3+. 5 तो 1 अनपेड रहेगा. अब साइनो क्या करेगा? साइनो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो 5 इलेक्ट्रॉन में होगा क्या? इट विल पेयर अप. ऐसा पेयर अप कर देगा, 1 अनपेड रहेगा. अगेन ये T2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल, and still with 1 unpaired electron it will be high spin, है ना. कोबाल्ट का 3+, 3d6 सब पैर हो जाएंगे. सब पैर हो जाएंगे. तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेगा.
ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट विल बी अ low spin complex because it doesn't have any unpaired electron, and that is why it will be diamagnetic, and among the options given will have the least value of paramagnetic behavior, option D. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वो पूछा जा सकता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरा डायामैग्नेटिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाय द वे साइनो के प्रेजेंस में ये जो 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल बी इन व्हिच T2G और EG ऑर्बिटल? T2G। तो ये भी पूछा जा सकता है कि T2G में कौन सा है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, T2G3 T2G वही ऐसे EG0, यहाँ पे T2G4 और EG0, सब वैसे ही T2G में ही है। हाँ, सब T2G में ही है, तो EG हमेशा 0 रहेगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ऑल बी इन द T2G। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि these are various types of questions related to the complexes। अच्छा, प्लेटिनम या रोडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो प्लेटिनम के केस में अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, तो वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इट विल बी स्क्वायर प्लेन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप याद रखो, यू डोंट नीड टू इवन वर्क आउट द हाइब्रिडाइजेशन। Platinum complexes are always square planar with coordination number equal to 4, and if at all coordination number 6 होगा तो D2sp3 होगा। ठीक है, D2sp3। if the nitrogen atom has electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of the normal ground state configuration 1s2 2s2 2p3, because the electrons would be closer to the nucleus. Yet 1s7 is not observed because it violates which principle? Bohr's postulate, no? नहीं, 1s में 7 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं क्या? वही तो, फिर बोर का वही ना पोस्टुलेट 2 4 बोर ने नहीं बोला था, बोर ने तो ऑर्बिटल के बारे में बात ही नहीं किया था जनरल। ऑर्बिट्स था ना, ऑर्बिट्स के बारे में था ना बात। हाँ सॉरी, एसपीडीएफ तो ऑर्बिटल्स है ना, बोर के टाइम तक तो ये डिस्कवरी। हाँ, इट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज क्या बोलता है? No two orbitals can have the same set of quantum numbers. All four quantum. इसका मतलब कंक्लूजन ये था कि each orbital can have a max of 2 electrons only, and that too with opposite spin. हाँ, तो खाली 3 क्वांटम नंबर मैक्स सेम रह सकते। हाँ, 3 ही सेम हो सकते हैं, चौथा तो स्पिन वाला अलग होगा ही होगा for the same orbital. So that is what is violated, Pauli's exclusion principle. Amoxicillin is semi-synthetic modification of which drug family does it refer to? मैं तो पेनिसिलिन सिमिलर साउंड कर रहा था इसके लिए। कौन से ड्रग फैमिली से है एमॉक्सिलिन? एमॉक्सिलिन नहीं सुना हुआ है क्या पता सर, पहली बार सुन रहा हूँ। बैक्टीरियोसिडिल आई गेस, पता नहीं। एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन याद है? हाँ, पेनिसिलिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड और ऑक्सलोसाइड का। हाँ, तो वही पूछा है, सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? सो इट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ही होगा ना, बिकॉज़ दे आर फ्रॉम द सेम दिस थिंग। एंटीबायोटिक सही है। हाँ, और एंटीबायोटिक्स में भी वी हैड बैक्टीरियोसिडिल एंड पाउसीटी, PAO and CET एक्सेट्रा। बैक्टीरियोसिडिल में कौन से एग्जांपल्स हैं? पाओ पेनिसिलिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड और क्लोरामफेनिकोल। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर वो है क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, सो केम इन एवरीडे लाइफ। Decreasing order of ionization potential of the following elements is high. फॉस्फोरस का ग्रेटर होगा सल्फर से। What is the correct way of identifying the correct answer? पहले जो elements दिए हैं, you arrange them in the period or group, whatever it is. अगर same period में तो well and good, नहीं हो तो वैसे arrange करो। हमेशा flow याद रखो, कैसे approach करना है डायरेक्टली। हाँ,
बी होगा बी। हाँ एमजी का ग्रेटर नहीं है, MgAl में भी एक्सेप्शन है। एमजी का ग्रेटर होगा ना, हाँ, एमजी चलो का चलो 2 देखते है। हैं, सुनो पहले हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, then there is phosphorus, sulfur, chlorine and neon, so they are belonging to the same period, in fact they are from the third period. Okay, अब magnesium has a filled configuration versus aluminium, so theoretically यहाँ पर left to right the ionization potential should go on increasing, but MgAl में there was an exception because of the stable configuration. बाद में normally जाता है, उसके बाद phosphorus में half filled आता है, तो sulfur के comparison में greater है, और फिर कोई exception नहीं है. तो सबसे highest IE किसी भी period में inert gases का रहता है. उसके बाद क्लोरीन का P और S में P का ज्यादा रहेगा S से, Mg और Al में Mg का greater रहेगा Al से. So this is the correct order. Option B. B is the answer. Same exception आपको second period में भी देखने मिलता है. बेरिलियम बोरॉन। हाँ, बेरिलियम लीडियम बोरॉन से जब ऑक्सीजन शुरू करते हैं, अगर सोडियम भी लिख ले तो ऐसे ही रहेगा वो. ठीक है, तो ये पूरा थर्ड पीरियड का आ गया. Which of the following factors is of no significance for roasting sulfide ores to the oxides and not subjecting the sulfide ores to carbon reduction directly? ये किया था यार, ये याद नहीं, सेम क्वेश्चन था यार, याद नहीं आ रहा है. आयन का अगर सल्फाइड हो और आयन का ऑक्साइड हो, which is easier to reduce? FeO. ऑक्साइड. तो हमेशा हम क्या करते हैं, सल्फाइड्स को रोस्ट करते हैं, Roasting ऑक्साइड में करके. कन्वर्ट करते हैं, और Oxide फिर में उसका convert. रिडक्शन करके मेटलर्जिकल प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस थे. तो सल्फाइड को डायरेक्टली हम रिडक्शन करके Fe में नहीं ले सकते हैं ना. तो उसका एक रीजन क्या होगा, व्हाई कांट वी डायरेक्टली रिड्यूस? व्हाट कैन यू टॉक अबाउट देयर स्टेबिलिटी? सल्फाइड इज मोर स्टेबल. मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं. सो मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन ऑक्साइड्स, एंड इवन दे आर स्टेबल देन द कार्बन का सल्फाइड यानी CH2. अच्छा, दूसरा CO2 वर्सेस CH2, they are talking about volatility. Which will be more volatile? CO2 is more volatile. CO2 will be more volatile. मतलब it will have a low boiling point CO2. than CH2. ज्यादा volatile मतलब low boiling point. और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड में स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना. It's about the molar mass which is higher for CH2. So this is high boiling point, low volatile, and this is low molar mass, so low boiling point, more volatile. High volatile. ठीक है. अच्छा, CO2 एंड CH2 में थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल कौन? CS2. CO2 is thermodynamically more stable than CH2 because of the polarization. अच्छा, वैसे अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन सिग्निफिकेंस वाला नहीं है वो तो समझ में आ गया होगा. लास्ट वाला D. मेटल के सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. अगर ऐसा होता तो सल्फाइड्स को डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते थे ना. तो ये तो गलत ही था. मतलब बाकी तीन स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो कि दे आर ऑलवेज करेक्ट. CO2 is more volatile than CH2, logically yes. मेटल के सल्फाइड्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन ऑक्साइड्स एज वेल एज कार्बन का सल्फाइड, देन CH2 एंड मेटल का ऑक्साइड्स, राइट. एंड CO2 और CH2 में CO2 is thermodynamically more stable. Stability. Okay. In the following sequence of reaction, the alkene affords the compound B. Double bond to oxygen zero. CH2 ना. CHO. A. अच्छा, ये फेमस अल्किन का नाम बताओ.
एसिटाल्डिहाइड नहीं नहीं ये अल्कीन का नहीं, ये वाला अच्छा प्रोटोनाल्डिहाइड आई गेस नहीं हाँ अगर ये तो ब्यूट-2-ene है, सॉरी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट CHO। पीछे हाँ तो ये जो है दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड व्हिच इज प्रोटोनाल्डिहाइड। प्रोटोनाल्डिहाइड। तो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन तो सिंपल था, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, और ये ओजोनोलिसिस जो है रिडक्टिव है कि रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव रिडक्टिव। तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही रहेगा, एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा। सो आंसर इज ए। The volume of a colloidal particle Vc as compared to the volume of a solute particle in a true solution. हाँ ये तो अभी Yes. अभी देखा। Colloidal बड़ा होता है कि true डी solution? कोलोइडल बड़ा होता है, कोलोइडल बड़ा कोलोइडल इज ग्रेटर। तो ये होता है 10⁻⁻6 के आसपास, और ये 10 होता है to -9 10⁻⁹ के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ का कंपैरिजन होता है। सो आंसर इज डी। The isomeric cis-butene and trans-butene can be distinguished on the basis of cis and trans physical states, reduction products, products they give on ozonolysis, या products they give on addition of bromine. on addition they will give optically different products. Optical isomers will give, no? They will give you stereoisomers which are different, because cis alkene when undergoes bromination, which is what type of addition? Syn या anti? सिन हाँ नहीं, addition of bromine is anti एंटी एडिशन है। ब्रोमीन इज फेमसली एंटी एडिशन, हैलोजनेशन। anti और सिस के साथ जब एंटी एडिशन होता है तो क्या मिलता है? enantiomers इनेंशियो मिलता है। और अगर Trans उसी सिस का anti ट्रांस meso अल्कीन में एंटी एडिशन होता है तो मीसोमर मीसोमर्स मिलता है। मतलब there is a single product obtained here and there are two optically active products obtained in the first case. याद है ना ये? हाँ बस एंटी। Cis alkene on anti-addition gives enantiomers and trans alkene on anti-addition gives mesomers. वैसे cis का sin होगा तो meso देगा, trans का sin होगा तो enantio देगा। 4 केसेस क्लियर है? यस ओके। सो फिजिकल स्टेट्स में cis एंड ट्रांस का फर्क नहीं आता है। रिडक्शन प्रोडक्ट दोनों का सिमिलर होगा, ओजोनोलाइसिस भी सिमिलर प्रोडक्ट देगा, बट ब्रोमिनेशन जब करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, PRST ढूंढना है। पहला कॉपर कार्बोनेट का हीटिंग गिव्स S CO2 क्योंकि ऑलरेडी कॉपर का ऑक्साइड नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब कॉपर का कार्बोनेट, ऑब्वियसली कोई भी कार्बोनेट हीट करोगे CO2 तो देयर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन। S तो CO2 S तो कार्बन डाइऑक्साइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will give calcium carbonate, CO3 which on excess of carbon dioxide in aqueous solution gives what? Calcium carbonate ना? Carbonates with CO2 gives you bicarbonate। बाइकार्बोनेट। कॉपर का ऑक्साइड हीटेड विद CuS, कोई रिएक्शन स्ट्राइक हो रहा है? बेस्मराइजेशन वेरी गुड, बेसमराइजेशन। जिसको और एक चीज क्या बोलते थे? सेल्फ रिडॉक्स समथिंग, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, ये लेड के साथ भी होता है। दूसरा याद रखो, लेड का जो गलेना है, गलेना सेल्फ क्या था? उसमें भी सेल्फ या ऑटो रिडक्शन होता है। ये रहा लिखा है ना, सेल्फ रिडक्शन। तो क्या होता है, सल्फर एंड ऑक्सीजन बर्न करके SO2 निकालता है एंड कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये कॉपर होगा। अब कॉपर विथ HNO3,
कॉन्क HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड तो NO2 मिलेगा, NO2 मिलेगा और कॉपर का NO2 नाइट्रेट। कॉपर का नाइट्रेट मिलेगा प्लस NO2 और प्लस H2। इसका बैलेंसिंग भी बताया था कैसे करना है ना। तो ये हो गया कॉपर का नाइट्रेट। देन इसको लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, CuNH3 UNH3 प्लस कॉम्प्लेक्सेशन होगा और कॉम्प्लेक्सेशन में विल फॉर्म द कपरामोनियम वाला कॉम्प्लेक्स CuNH3 2 प्लस वाला कॉम्प्लेक्स। कैप्शन एंड ये फेमसली कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर DsP2 and paramagnetic DsP2 and paramagnetic स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। and paramagnetic भी है। हाँ, पैरामैग्नेटिक विद हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? one पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो फेमस एग्जांपल है, डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए आपको। मैग्नेटिक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन तो आ गया कपरामोनियम। हेंस पी जो है वो पी कॉपर है। ठीक है, आर जो है कपरामोनियम कॉम्प्लेक्स, फिर SCO2 और टी जो है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। समझा? Which of the following has p pi d pi bonding? SO3 2 minus B ना सर, SO3 2 minus SO3 Undoubtedly। और किसी में D ऑर्बिटल है, D है ही नहीं दूसरे। बाकी सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, और सेकेंड पीरियड के लिए हमेशा क्या बोलता हूँ, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डू नॉट हैव weakened d ऑर्बिटल्स। उसमें D रिलेटेड कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। समझा? The degree of hardness of water is usually expressed in terms of parts per million of CaCO3 parts per million of CaCO3। So option C या D? C Regardless of what is actually present, चाहे मैग्नीशियम के सल्फेट हो, कैल्शियम के सल्फेट हो, हार्डनेस जो है that is always measured in terms of CaCO3 because the molar mass of CaCO3 is 100 तो डायरेक्टली परसेंटेज ही दे देता है। So regardless of whether it is actually present। The EMF of a Daniell cell at 298 Kelvin is E1 for this particular Daniell cell. Now when the concentration of ZnSO4 is 1 molar and that of CuSO4 is 0.01 molar, reverse कर दिया, तो EMF is changed to E2। रिलेशन बताना है। तो नस्ट इक्वेशन लिख देंगे दोनों के लिए और फिर चलो लेट्स राइट द नस्ट इक्वेशन। E of the cell equal to E naught of the cell minus E naught minus 0.06 by n log 0.06 by 2 log to the base 10 by 2 ZnSO4 Zn plus 2 upon Cu plus 2 Zn plus 2 upon Cu plus 2 raised to 1 each। अगर stoichiometric coefficient 1 के अलावा हो तो raised to power भी करना है। ठीक है, तो E1 के केस में आपका ये जो रेशियो है that will be equal to log of 10 - 2 और E2 के केस में -2 log of उल्टा हो जाएगा 10⁻²। तो now even greater होगा क्योंकि ये -2 जब नीचे आएगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा। So E naught will be added with something, so E of the cell meaning the E1 will be greater than E2। That's option B। Here non-standard galvanic cell। Which of the following does not show optical isomerism? Ma3b3 सर। हाँ Ma3b3 B A वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट दो बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। दैट इज अ सिंपल रूल, यू कैन रिमेम्बर। मतलब ये क्वेश्चन खाली उस रूल के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और Ma3b3 इज फेमसली फैक्मर वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है, फेशियल एंड मेरिडियनल। फेशियल एंड मेरिडियनल। सेकेंड वाला जो है कौन म्यूट करो। सेकेंड इज Ma थ्राइस वाला कॉम्प्लेक्स, Ma थ्राइस
तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे? हाँ इसमें खाली दो No, that ऑप्टिकल will be दो ऑप्टिकल दो ऑप्टिकल होगा, एक भी extrolable. ज्योमेट्रिक नहीं होगा। Geometric नहीं होगा। Then M AA twice A2. दो ऑप्टिकल, दो दो ज्योमेट्रिकल, GI दो भी होंगे, ऑप्टिकल, टोटल 3। टोटल 3। दो GI, और GI वाले में जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। इसका एक ही नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सिस का मिरर, हाँ बराबर। सिस का वापस डेक्स्ट्रो और लेवो आएगा। तो 2 GI प्लस 1 OI, टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स। इंडिविजुअली पूछेंगे तो 2 GI प्लस 2 OI ऐसे लिखेंगे ना, और टोटल पूछा तो 3, बिकॉज इसके 2 बाइफर्केशन है। समझा? 29.5 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to Jehl-Dahl method, and the evolved ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 molar HCl solution. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH for complete neutralization. So percentage nitrogen in the compound. 1.4 into milliequivalents of acid upon 1.4 into milliequivalents of MEQ acid upon mass upon the weight of organic sample. क्या? हाँ अभी खाली एसिड का मिली इक्विवेलेंस मिल जाएगा, माइनस NaOH का कर लेंगे तो वो MEQ ऑफ एसिड मिल जाएगा। नाइट्रोजन अगर सिर्फ एसिड के रिलेशन में डेटा दिया है तो डायरेक्टली 1.4 into मिली इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड। बट अगर एसिड और बेस दिया है तो जेल-डाल में होता क्या है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसमें से अमोनिया लिबरेट होता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करके अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक है, और उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करके फिर एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला और भी है, 1.4 into molarity of acid into the n factor या फिर basicity into V minus V1 by 2. V is the volume of the acid, V1 or I can say VB, volume of the base, by the n factor. अब यहाँ पे तो एसिड आपका HCl यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता तो n फैक्टर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता ना। ये वही है ना, M1 V1 minus M2 V2 ही कर रहे हो आप सर? हाँ वही कर रहा हूँ N1 V1 minus M2 yes. So 1.4 into एसिड का मोलैरिटी इज 0.1 into n फैक्टर 1 है, वॉल्यूम जो है दैट विल बी सिंपली 20 minus 15 by 1, और वेट जो है दैट इज 29.5 into 10 raised to minus 3. सो ये 10 raised to minus 3 और ये 10 raised to minus 1 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। ये डिफरेंस 5 का आ रहा है तो 700 बचा ऊपर और डिवाइड बाय के आसपास अप्रॉक्स। द आंसर इज समवेयर अराउंड 23%। दैट्स ऑप्शन डी। क्लियर? Va minus Vb upon n factor, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 आता, which is nothing but milli equivalents actually consumed, वो हम फाइंड कर रहे हैं। The basic character of transition metal oxides follow the order. Basic character. How is basic character related to the oxides? As we go from left to right, basic character decreases, na? Because the metallic character decreases from left to right. तो जो ज्यादा मेटेलिक होता है, जो ज्यादा आयोनिक होता है, वो ज्यादा बेसिक होता है। तो ये अपना ट्रांजिशन मेटल का सीरीज ही है ना, 3D वाला। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा होगा लेफ्ट टू राइट में? टिटेनियम। लेफ्ट वाला टिटेनियम के बाद वनेडियम, फिर क्रोमियम एंड फिर आयन। सो आंसर इज डी। सिंपल था ये। मोर आयोनिक। CRO एम्फोटेरिक होता है क्या? CR
हाँ Cr2O3 तो होता है, Cr2O3 होता है, Cr2O3 और होता है। हाँ पर शायद से क्रोमियम के 2-3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होते हैं ना। हाँ, हाँ और बराबर, हायर वाले में एसिडिक, हाँ, और मिडल वाला जो है Acidic. वो मिडिल एम्फोटेरिक, वाला याद एम्फोटेरिक रख वो। सकते हो। Among the following, how many of them will give a positive test with Tollens? फर्स्ट देगा, सेकंड भी पहला देगा, देगा, सेकंड भी थर्ड देगा, देगा, थर्ड भी देगा, फोर्थ भी देगा, फोर्थ भी देगा, फिफ्थ भी देगा, फिफ्थ भी सिक्स्थ देगा, भी देगा, सिक्स्थ भी देगा, सेवेंथ नहीं देगा, सेवेंथ एट्थ देगा, एट्थ देगा, 8 है क्या? ये चलो 3 टिक करते जाते हैं। फर्स्ट वन, देगा, अच्छा इस देगा। अल्डिहाइड का एक नाम भी है, प्यूरान विद CHO। क्या प्लूरल वो है ना? फ्यूरल्डिहाइड। अच्छा, फ्यूरल्डिहाइड जो है, if I talk about aldol and canizaros, it will give which reaction? कैनिज़ारो, It will undergo canizaros because of the absence of अल्फा एच, alpha H. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स अल्फा मिलेंगे, H. वन विल बी एसिड एंड सेकंड विल बी अल्कोहल, एसिड अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो फाइनली, एंड अल्कोहल कौन सा अल्कोहल? CH2OH, प्राइमरी वाला अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है इसको फ्यूरोइक एसिड बोलते हैं, और जो अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड फ्यूराइल अल्कोहल। इन केस जस्ट नाम के रिलेटेड अगर कुछ आ गया तो फ्यूरल्डिहाइड। ठीक है, सो एनीवेज फ्यूरल्डिहाइड टोलेंस पास करेगा। हाँ, यस, 1। नेक्स्ट 7 है आंसर सर, 7। 7 है, 7 होगा करेक्ट। बराबर, 7 ये है। टर्मिनल अल्काइन है जो एसिडिक होते हैं, वो टोलेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। बेंजल्डिहाइड टोलेंस देता है, देता है, फेलिंग्स होता तो नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं फॉर्मल्डिहाइड ऑफ कोर्स देगा। देगा, ये भी देगा बिकॉज ऑफ acid HCO, is the only acid which can give because of the प्रेजेंट ऑफ CHO ग्रुप, presence of the aldehydic या फॉर्माइल ग्रुप, तो ये भी देगा। ये देगा, एसिडिक एसिड में कोई एसिडल्डिहाइड है ना सर, फॉर्माइल ग्रुप नहीं है, एसिडल्डिहाइड है सर। सॉरी एसिटल्डिहाइड है। हाँ एसिटल्डिहाइड देगा, सॉरी मैंने एसिड देगा, सॉरी। हाँ ये देगा। 7th, एसिडिक अच्छा, ये एसिड नहीं देगा, ये नहीं देगा ये और वापस बाकी देगा। देगा, और ये देगा, और ये कौन सा ये अल्कोहल नहीं है? देगा, ये नहीं देगा। अल्कोहल का नाम क्या है? फाइलो नहीं फ्लोरोग्लूसिनॉल, 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 135 वाले को फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल, 124 123 वाले को पायरोगैनोल, पायरोग्लोल सॉरी एंड 124 का तो नाम नहीं है, 123 का 124 और 123 को पायरोगैनॉल। पायरोगैनोल, ठीक है, सो आंसर 7 है। पायरोग्लोल एंड फ्लोरोग्लूसिनॉल। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ रुबिडियम is Rb85 72% and Rb87 28%. Rb87 is weakly radioactive and decays by beta emission with a decay constant of 1.1 into 10 power minus 11 per year. A sample of the mineral pollucite was found to contain 450 milligram of rubidium and 0.72 milligram of strontium 87. The age of pollucite mineral is 0.72 of strontium ना, अप्रोच क्या होगा बताओ? जो स्ट्रोंशियम बना होगा वो रुबिडियम जो रेडियो एक्टिव है उससे बना होगा, रुबिडियम से बना है। हाँ, क्योंकि बोला है ना कि रुबिडियम 87 इज वीकली रेडियोएक्टिव एंड डीकेज बाय बीटा एमिशन। तो अगर रुबिडियम 87 का बीटा एमिशन किया तो क्या मिलेगा यहाँ पर? अच्छा, बीटा एमिशन होने पर what changes and what remains fixed? mass remains Charge fixed, increases, mass remains same.
तो 87 तो ऐसे ही रहेगा, और एटॉमिक नंबर और ये चेंज हो जाएगा, 1 से बढ़ जाता है, प्लस 1 आ जाएगा। और जब SR बन रुबेडियम जाएगा। के बाद वाला एलिमेंट आप देखोगे तो दैट इज स्ट्रॉन्शियम में स्ट्रोंशियम ओनली। SR। समझा? अच्छा, अभी एज फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n is equal to n नॉट e raised to minus lambda t यूज करके n को अपन 0.72 और n नॉट को 450 ले सकते हैं क्या? 450 पूरा नहीं ले सकते हैं ना, 450 थोड़ी n नॉट है। हाँ नहीं सॉरी, सिर्फ उसका भी 87 वाला कॉम्पोजिशन है ना वो तो। रेडियो एक्टिव है ना, तो 450 का हाँ तो 450 का भी 72%। 28 इसका 72 28%। नहीं 28%, 28%। ये वाला हाँ रेडियो एक्टिव है ना 28%, 87 वाला। मतलब बेसिकली जो अप्रोच है T, वो एज देगा पोल्यूसाइट मिनरल का गिवन बाय 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट which is dk constant in this case, जिसको हम लैम्बडा लिख देंगे, into log to the base 10 amount of the radioactive substance initially present upon amount of the radioactive substance finally present. पर सर ये थोड़ी इनिशियल थोड़ी ना, ये है इनिशियल थोड़ी ना 450 का इधर ढूंढा ही 28%। नहीं है मैंने, तो खाली फॉर्मूला लिखा है। कहाँ पर आप बोल रहे हो n नॉट इज 450 का 28%? नहीं, मैंने n नॉट का नहीं बोला, मैं बोला 450 का 28% जो है वो रुबेडियम का अमाउंट होगा रेडियो एक्टिव वाला। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ n नॉट कितना होगा, इनिशियली कितना प्रेजेंट होगा? A sample of the mineral was found to contain this much of rubidium and this much of strontium also ना, मतलब जो इनिशियल अमाउंट होगा that will be 450 मिलीग्राम का 28% प्लस 0.72, राइट? हाँ ओ हाँ बराबर। इनिशियल ना, स्ट्रोंशियम भी इनिशियली प्रेजेंट होगा, करेक्ट? अब 450 का 28% करोगे तो 126 आएगा, ऐड करो 0.72, ये आ जाएगा मिलीग्राम में। और NT जो अमाउंट आफ्टर एमिशन बचेगा वो क्या होगा? 450 का 0.28 माइनस 0.72। माइनस क्यों करोगे? बिकॉज इतना स्ट्रोंशियम कन्वर्ट हो चुका है ना। तो 450 का 28% तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रुबिडियम है, और एमिशन होने के बाद आपका स्ट्रोंशियम का फॉर्मेशन हुआ है विच इज 0.72 मिलीग्राम। तो जो अमाउंट 0.72 हाँ 0.72 होगा ना फाइनल तो। क्यों? एक सेकंड सर। एंटी मतलब वो स्ट्रोंशियम का मास नहीं, रुबिडियम का मास चाहिए अपने को। रुबिडियम का फाइनल मास 126 ही होगा ना। तो 126.72। will you consider this 72% of the 450 milligram anywhere? No, that is not. No, that is not required. 450 into 0.28 खाली, क्यों? क्योंकि वही उतना ही तो रुबिडियम रेडियो एक्टिव बचा है ना, 72% उससे कुछ करना ही नहीं है। करेक्ट। जो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है विच इज रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग जो होगा, और 450 मिलीग्राम का 28% ही बचेगा ना, विच इज दिस पार्ट 126 मिलीग्राम। एन नॉट तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अ सैंपल ऑफ द मिनरल वाज फाउंड टू कंटेन 450 मिलीग्राम ऑफ रुबिडियम एंड 0.72 मिलीग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम। अब डीके होने के बाद रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी जो है दैट विल बी ओनली दिस मच। अच्छा वो जो एज है दैट विल बी इक्वल टू 2.3 अपॉन 1.1 into 10 power minus 11 into log to the base 10 126.72 upon 126. How do you solve this? ये बहुत खराब कैलकुलेशन, बहुत गंदा है सर। This is approximately 0.00 समथिंग आएगा इसका वैल्यू।
दिस अप्रोक्सीमेटली 1 0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। हाँ तो log का वाली log 1 is 0 so उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब एक्चुअली ना इसको सॉल्व करने के लिए दे शुड हैव गिवन अ लॉग वैल्यू हियर जो आप यूज कर पाओगे, वरना इसको सॉल्व करना कोई भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। लॉग ऑफ यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो एक लॉग का वैल्यू 1.005 आता है इसका रेशियो का, जीरो से वैल्यू ऑफ थोड़ा सा दैट इज बड़ा होगा। 2.16 into 10⁻³ ये देना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट सॉल्वेबल। अप्रोच तो ठीक है बट कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा। देयर इज नो वे टू सॉल्व एंड गेट टू द वैल्यू ऑफ 1.005, बहुत मुश्किल हो जाएगा हाँ है ना, तो इतना तो उनको देना ही पड़ेगा। एनीवेज 2.3 upon 1.1 ये भी क्या करते हैं ये लोग बहुत बार, जब एग्जैक्ट डेसिमल वाला वैल्यूज के हिसाब से आपको आंसर देना है तो दे विल give you that consider the value of 2.303 to be equal to 2.3 या truncate up to the 2 digits, ये सब देना चाहिए। हाँ ये देते हैं। हाँ वो सब देते ऐसे हैं। आते अगर भी आप नहीं है, मतलब ऐसे कैलकुलेशन आते भी नहीं है। एक आध आ नहीं आते, गया तो इतना कोई ज्यादा भरोसा आता। नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है हाँ, बट इट विल बी 1 out of the 5 questions, not all। एनीवेज सॉल्व करने के बाद ये 10⁸ हो जाता है और ये करीबन 5.8 के आसपास आता है, 1/8 2-3 तो ऑर्गेनिक ही आते हैं। ईयर्स में हो जाएगा एज। क्लियर? ये सिंपल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड आर डीकम्पोज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन टू फॉर्म 1 mole ऑफ सोडियम क्लोरेट? हम बैलेंस कर दो ना, सो इसमें तो बैलेंस करोगे? इक्विवेलेंस से दूंगा। हाँ Equivalence ले एन लो ना। फैक्टर। हाँ हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन है ना उसके लिए थोड़ा। Equivalence of NaCOCl is equal to equivalence of NaClO3। ये लो 3 ये तो हाइपोक्लोरस है तो +1, ये क्लोरेट है +5 आएगा और ये क्लोराइड -1। तो NaOCl का N फैक्टर क्या है? 2 और 4 4 ना, और इसके मोल्स आपको फाइंड करने हैं तो मोल्स हाँ इनटू एन N हाँ फैक्टर बराबर। +1 से +5 राइट। सॉरी ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन ना, है ना। तो n1 n2 अपन n1 plus n2 हाँ तो N फैक्टर विल बी इंक्रीज इनटू डिक्रीज अपॉन इंक्रीज प्लस 4 डिक्रीज। into 2 upon 4 4 plus into 2 upon 4 plus 2 plus 2 4 is equal into to 2 8/6 upon या 6 4/3। याद है ना, N factor for a disproportionation reaction is increase into decrease upon increase plus decrease, N1 into N2 upon N1 plus N2, 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक मोल दिया है इसका N factor सिंपली क्या 4 तो ही 4 ही रहेगा। होगा। हाँ 4 कैंसल, मोल्स आ गए 3, आंसर है 3। क्लियर? 24. Consider the following list of reagents. Acidified dichromate दिए हुए कुछ। The total number of reagents that can oxidize the aqueous iodide to iodine is, ये वाला पहला acidified Yes. dichromate करेगा। सर पर वो सॉल्यूशन वो भी देना चाहिए ना, एसिडिक है कि मीडियम से एसिडिक और बेसिक। दिया है ना ये क्या acidified dichromate, ये करेगा कि नहीं? एसिड नहीं, ये तो KiO3 देता है ना। नहीं, हाँ तो अल्कलाइन ज्यादा KMnO4 KiO3 देता है। अल्कलाइन KiO3 देता है और एसिडिफाइड I2 देता है। एसिडिफाइड KMnO4 भी होता ना तो भी I2 देता, हाँ, तो भी अल्कलाइन I2 में देता है, आयोडेट मिलता बराबर। है एसिडिफाइड तो खुद भी I2 देता ये है। देता है, ये नहीं देगा। CuSO4 देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? द स्पीशीज व्हिच हैव देयर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ यस हाँ और तो नो? वही तो ये देगा ना। तो ये भी देगा। फिर H2O2 का आयोडाइड वाला H2O2 रिएक्शन भी है भी देगा। अपने सिलेबस में, हाँ वो भी I2 देता है। क्लोरीन ये भी देता है ना, Cl2 Ki also plus Cl2 वाला रिएक्शन अगर करेंगे तो डज इट गिव KCl and I2? Is this reaction spontaneous valid? नहीं, ये नहीं होता शायद।
What is the rule of displacement for halogens? Rule of displacement for lower halogens. displaces हाँ आएगा सर ये देगा ना CL Upper देगा displaces lower. खुश. देगा ना भाई सर ये देगा सर This is a valid reaction. हाँ, Chlorine sorry, can sorry, displace iodide. हाँ सर it can displace बराबर ठीक है, जो हायर SRP वाला है वो हमेशा रिड्यूस होगा एंड इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. लोअर SRP वाला ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज करेक्ट. ओजोन O3 का भी रिएक्शन देगा है अपने पास, Ki प्लस O3 वाटर के प्रेजेंस में KOH देगा, I2 देगा और O2 देगा. एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में ये रिएक्शन है, ये भी वैलिड है. FeCl3 देना which is चाहिए in the max oxidation state. यस They are oxidizing agents ये definitely. ये तो O3 नहीं ये देगा तो ये वाला ये नहीं नहीं देगा। देगा because it is not in the max oxidation वो I2 state. के साथ रिएक्ट करके I2 के साथ रिएक्ट हाँ, करता ये है I2 और के साथ Na रिएक्ट देता है करेगा तो इनफैक्ट और सोडियम Na इसको क्या बोलते हैं? हाइपो हाइपो. तो ये थायो वाला जो Hypo. कंपाउंड है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग Thiosulfate. एजेंट है ही नहीं, तो ये भी रूल्ड आउट है. The correct answer is 6. Here 25. Consider the following complex dichlorobis ethylene diamine chromium 3 chloride. फॉर्मूला बताओ पहले. Cr En twice Cl2 और Cl Cl को फिर लिख देंगे बैलेंस Cl बार बैलेंस्ड है वो, बराबर क्रोमियम Balance है ना? +3 में है ना. हाँ बैलेंस Now the questions are number of electrons in Eg orbital is x. 1 mole of compound with AgNO3 हाँ, तो gives लिख y देंगे। moles. Y मुझे भी Total stereoid isomeric form Z है. सम फाइंड करना है. Z तो 3 है ना रुको एक एक करके करते हैं. पहले तो क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3. कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 4 हाँ 3D4 3D4. वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड? Strong field. 3 Strong field. 3D Strong. हाँ +3 है ना. हाँ +3 सॉरी 3D3 होगा. 3D3 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है En स्ट्रॉन्ग है ना EN स्ट्रॉन्ग थोड़ी है. En स्ट्रॉन्ग है ना नहीं भी हो तो Eg में तो 0 ही होगा En स्ट्रॉन्ग है ना सर हाँ EN NH3 ये सब स्ट्रॉन्ग COCN EN NH3 EN strong En स्ट्रॉन्ग है Now if you consider हाँ, this as a तो strong weak भी हो ligand तो in भी case Eg करना तो 0 ही होगा T2G में तो 0 होगा. हाँ Eg में तो 0 ही है भाई मुझे बताओ यहाँ पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पर 3 ही है ना नहीं क्या होगा नहीं तीन होगा इलेक्ट्रॉन अब तो पेयर कैसे होगा theoretically EN as a strong field ligand pairing होना चाहिए, but as we already discussed कि hybridization जो है that's a theoretical concept. D यहाँ plus पे अगर आप 2 पैर कर दोगे तो 3 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा ना. हाँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब स्प्लिट होगा तो हाँ। T2G 3 और EG 0 होगा. 0 एनीवेज इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होंगे, तो इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर इसका 3 है. फिर AgNO3 एक्सेस के साथ कितना AgCl बनाएगा? एक मोल नहीं सर आंसर Okay, 0 है एक 0 है CL. एक 0 है सर एक 0 है ना सर Eg में 0 होगा सॉरी EG में Eg पूछा है. पूछा है सॉरी 0. हाँ फिर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिक तीन फॉर्म्स 3 होंगे 3 अभी हमने 3 डिस्कस किया ना ये T3 M8 वाइज A2 वाला कॉम्प्लेक्स. 2 GI 2 हाँ। OI अभी डिस्कस किया हमने 2 GI और 2 OI. टोटल लिखेंगे टोटल कितना? 3 3. तो Z हो जाएगा 3 और टोटल X प्लस Y प्लस Z का आंसर होगा 4. क्लियर? नाइस बंद कर यस डन. अच्छा था सर म्यूट करो खुश जन्म. ओके चलो अभी कॉलेज डोर्स पे 5 पेपर्स अपलोड हो गए होंगे शायद आज. मैंने कल ही बात किया था उनसे. तो यू कैन सॉल्व दोस 5. मैंने उनको बोला है अच्छे स्टैंडर्ड पेपर्स सेट करके आप अपलोड करो.
So you can practice those 5 papers before the actual test. And in case of any doubts, आप मुझे message करो या call करो. And if possible, I'll try to take one more session of those 5 papers. कुछ अच्छे questions जो है वो निकाल के उसको solve कर लेंगे. But make sure that you solve at least those 5 practice papers before your test. Okay. Okay, sir. चलो वापस अगर सेशन हुआ नहीं हुआ, ऑल द वेरी बेस्ट. इतना टाइम पेशेंटली आप लोग रुके हो, हेड्स ऑफ टू यू ऑल. बट जस्ट नाउ डी डे पे जाकर अपना 100% देना एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. थैंक यू सो मच सर. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. बाय सर. बाय बाय.